Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, listeners, will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. Listeners who will call us from outside Delhi will need to prefix the Delhi STD code 011 before these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देंगे आपको ताजा आर्थिक समाचार। आज सोमवार है, कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुबा रोहतगी। Thank you, Vishal. Domestic stocks witness modest losses. Sensex closes at 52,852. Nifty settles at 15,824. Global equity indices decline as strong U.S. corporate earnings suck funds out of emerging markets. And Brent crude prices slip below $74 per barrel mark. घरेलू शेयर बाजारों में हल्की गिरावट। सेंसेक्स 52,852 और निफ्टी 15,824 पर हुए बंद। अमेरिका में मजबूत कंपनी नतीजों के चलते उभरते बाजारों की बजाय अमेरिकी शेयर बाजारों में निवेश से वैश्विक शेयर सूचकांकों में गिरावट और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम फिसलकर $74 प्रति बैरल से नीचे आए। कार्यक्रम में बात सबसे पहले शेयर बाजार की। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में आज हल्की गिरावट दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.23% गिरकर 124 अंक के नुकसान से 52,852 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.2% लुढ़ककर 32 अंक की गिरावट से 15,824 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.06% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.34% की बढ़त में रहे। The Sensex and the Nifty today witnessed modest losses amid negative global cues. The BSE Sensex fell 124 points or 0.23% to trade at 52,852. The NSE Nifty also slipped 32 points or 0.2% to trade at 15,824. In the broader market at BSE, on the other hand, the mid-cap added 0.06% and the small-cap index gained 0.34%. In the Sensex SPAC, shares of 11 companies gained while 19 slipped. Bajaj Finserv was the top gainer as it surged 2.5%, followed by Ultratech Cement, which gained 1.8%. Sun Pharma climbed 1.4%, while Titan and Tata Steel both rose 1.3%. On the other hand, SBI lost the most, falling 1.4%, and Reliance plunged 1.3%. Mahindra & Mahindra declined 1.2%, while Tech Mahindra and Larsen Tubro both fell 0.9%. In sectoral indices, 6 sectors climbed while 13 fell. Basic materials sector climbed 0.8%, consumer durables gained 0.7%, and metal surged 0.6%. On the other side, energy declined 1.1%, while realty and power both fell 0.8%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,777 companies gained, while 1,573 fell. Shares of 159 companies remained unchanged. Dr. Agarwal,
the Nifty, the indices today, in fact, opened flat, and then we saw quite a bit of volatility during the day, and ultimately the bourses they closed, in the red. So clearly, departure from what happened on Friday when the markets closed in the green. Obviously, like we just said, that the markets here took the cue from the global markets, which were in the negative, and also, like we discussed earlier in our program in Money Matters, the Reliance Industries first quarter results also had some effect on the markets. The market was looking at the quarterly, at the results which were supposed to be declared, and it had an effect on the overall market sentiment. Besides the fact that the Delta variant has been causing new infections, that has also impacted investor sentiment. Overall, the COVID cases on a rise because of the Delta variant is one of the reasons for a fall. Also, not having the expected results is also another cause for the fall. We do see a lot of volatility primarily in the market, which would continue till the time the possibility of a third wave is around in terms of happening. जी, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से फोन नंबर बता देते हैं जिन पर वो हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर यामिनी, बात हो रही थी बाजार में आज की गिरावट की। देखा जाए तो बाजार अपने उच्चतम स्तर के करीब आकर गिर रहा है। क्या मुख्य वजह मानती हैं इस उतार चढ़ाव की, और क्या यहां पर एक सवाल मैं और भी जोड़ना चाहूंगा कि एफपीआई की निकासी का फैक्टर इसके लिए कितना जिम्मेदार? जी देखिए, ओवरऑल मार्केट्स जो है पॉजिटिव टेरिटरी में है इन टर्म्स ऑफ द ऑप्टिमिज्म विद रिस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी। तो जहां तक देखा जाए, इकोनॉमी क्योंकि ओपन अप हो रही है, रिकवरीज हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, उसकी वजह से एक पॉजिटिव आउटलुक है। पर अनसर्टेनिटी है थर्ड वेव के आने की, और फेड के जो वीक में आने का ये है कि कब जो है वो डिसाइड करेंगे कि टेपर करें अपनी परचेजेस, उसका भी इफेक्ट नजर आ रहा है एफआईआईज के सेलिंग पर। ये भी देखा जा रहा है कि यूएस की जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स रही हैं वो अच्छी रही हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड रही हैं, जिसका असर भी नजर आ रहा है। पर रिकवरी वहां पे भी अंडरवे है और अभी पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हुई है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में कोविड केसेस राइज होने की वजह से हमें एक डैम्पनिंग इफेक्ट नजर आ रहा है। जी, और हमारे आज के सबसे पहले कॉलर हैं मुंबई से गोपाल जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। हाँ जी, मार्केट मैनेजर को नमस्कार। सर, मैं आपको सवाल पूछने के बाद में आपका जवाब रेडियो पे सुनूंगा, क्योंकि बारिश की वजह से आवाज मेरे अपने मोबाइल पे बरोबर नहीं आ रहा है। जी जरूर। बहुत जब मुंबई में बारिश चल रही है जबरदस्त, इसकी वजह से। हाँ, तो सर मेरा सवाल ये है कि कल मैंने ये जी न्यूज पे देखा था कि सेबी ने ये अभी क्या है कि जो डीमैट जिसका अकाउंट है, जो जिनका ऑलरेडी है, उनको नॉमिनी कंपलसरी किया है 2022 तक वो कैसा भी नॉमिनी डालना है जी। और जो नया अकाउंट होल्डर है अक्टूबर से उनको नॉमिनी फॉर्म भरना जरूरी है। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा तो डीमैट अकाउंट है और मेरा ज्वाइंट में मेरी मदर का नाम था, तो मेरी मदर 2015 में एक्सपायर हो गई है। उसके बाद मैं सिंगल है, मैं बैचलर है और मेरा ट्रेडिंग चल रही है जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब मैं अभी उसमें नॉमिनी कैसे डालूं, जबकि मैं उनको पूछा मैं नॉमिनी डालना है, तो उन्होंने बोला आपको नॉमिनी नहीं हो सकता क्योंकि आपका सेकंड होल्डर का डेथ हो चुका है, दोनों का सिग्नेचर चाहिए। तो अभी मैं करूँ तो क्या करूँ? ये लोग कुछ मेरे को बरोबर ये बहुत परेशान कर रही है सिक्योरिटी जहाँ पे मेरा ट्रेडिंग चल रही है। तो मेरे को थोड़ा बताइए तो मैं आगे मेरे को फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आए। मैं सिंगल है जी, और मैं बैचलर की। आप अपने ब्रोकर को अपने जॉइंट अकाउंट होल्डर के डेथ सर्टिफिकेट देख करके कह सकते हैं कि उसे सिंगल नेम पे किया जाए, और फिर उसके बाद उसके ऊपर उस पे जो नॉमिनी का फॉर्म है वो भर करके आप अपने ब्रोकर को दे सकते हैं, और वो फिर वो चेंजेस कराएगा आपके डीमैट अकाउंट में। जी, डॉक्टर यामिनी, बात हो रही थी शेयर बाजार में जो एक बार अपने उच्चतम स्तर के करीब आकर गिर रहा है बाजार, और हम बात कर रहे थे कि एफपीआई की निकासी का फैक्टर इसके लिए कितना जिम्मेदार है। जो डिपॉजिटरी के आंकड़े जो अभी आए हैं वो ये बता रहे हैं कि जुलाई में अब तक एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजारों से 5,600
89 करोड़ रुपए निकाले हैं और निकालकर ऋण या बॉन्ड बाजार में 3,190 करोड़ 76 लाख रुपए डाले भी हैं। तो क्या वैल्यूएशंस को लेकर के जो जैसे कि बार बार ये बात सामने आती है कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हैं अभी मार्केट में, तो वैल्यूएशंस को लेकर के एफपीआई भी कुछ संशय में दिखते हैं? ये देखिए, एफआईआईज मोस्टली जो निवेश करते हैं वो ये देखते हैं कि ओवरऑल कितना पोटेंशियल है कंपनीज में और क्या ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं। जहां पे अगर आप देखें तो रिफॉर्म प्रोसेसेस काफी स्ट्रांग है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन को लेकर के हों या ओवरऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के हों, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के हों, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हों, तो वहां पे एक पॉजिटिविटी है। पर क्योंकि फेड ने डिसाइड किया था कि वो अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकती है, पर उसका जो है उन्होंने एक समय सीमा निर्धारित की थी कि 2023 में करेंगे, उसकी वजह से काफी असर रहा वॉलेटिलिटी पे मार्केट्स की और एफआईआईज के मार्केट से पैसा निकालने का। फेड ने ये भी कहा कि वो बॉन्ड टेम्परिंग करेंगी, जिसका सीधा असर एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट पे भी पड़ता है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बाहर की तरफ चेंज हो रहे हैं, उसका असर एफआईआईज की बाइंग और सेलिंग इफेक्ट पे पड़ रहा है। ये भी देखा गया क्योंकि ओवरऑल कोविड का सिनेरियो है और अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं है सेल्स के प्रति, तो मार्केट वैल्यूएशंस काफी एलिवेटेड रहे हैं, जिसका असर प्रॉफिट बुकिंग पे भी रहा है एट टाइम्स। And now we have our next caller online, Gaurav from Ghaziabad. Gaurav, प्रोग्राम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें। मैडम आपको और मार्केट मंत्रा के मिस्टर विशाल को नमस्कार। मेरा सवाल मैडम तो ये है कि जब भी ये कोई बाढ़ आती है भयानक या कोई त्रासदी आती है या कोई, आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। हाँ, जब भी कोई बाढ़ आती है, त्रासदी आती है या जब जैसे कोई पेंडेमिक आती है, उसका देखा गया मार्केट बहुत जबरदस्त भागता है क्योंकि नई आइटमें खरीदी जाएंगी, रिवाइवल होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है। तो ये क्या एक कोरिलेशन है इसमें? जैसे पेंडेमिक आई तो मार्केट एकदम जबरदस्त भाग गई, अब बाढ़ आई है तो फिर मार्केट को डिमांड आएगी तो फिर मार्केट और तेज चलेगी। मतलब इज इट देयर इज कोरिलेशन बिटवीन ऑल दीज ट्रेजेडीज एंड नेशनल क्रॉस ट्रेजेडीज एंड मार्केट रिवाइवल, मार्केट बूमिंग? थैंक यू जी। देखिए, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन जब कोई जो है नेचुरल डिजास्टर आती है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड्स हो या ड्राउट हो या कोई और दिक्कत हो, तो ओवरऑल अर्निंग कैपेबिलिटीज थोड़ी कम हो जाती हैं, जिसका असर मार्केट्स में भी नजर आता है या मार्केट सेंटिमेंट्स में भी नजर आता है। कोविड एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेंडेमिक है जिसमें लोगों को जो है बाहर जाना कम हो गया, उनके जो वर्किंग एरियाज हैं वो डिफरेंशिएट हो गए। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स में काफी इन्वेस्टमेंट आई नए निवेशकों की और एक अलग से अपॉर्चुनिटी बनी मार्केट्स के लिए जब ओपन हुई या इकोनॉमिक रिकवरीज के ऊपर एक पॉजिटिव साइन आया, जिसका रिस्पॉन्ड किया है मार्केट इन्वेस्टर्स ने। तो कोरिलेशन कहना शायद सही नहीं होगा जी। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से हसमुख जी। हसमुख जी, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। नमस्कार जी। यामिनी जी, विशाल जी, सबको जी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो टेलीकॉम सेक्टर में एजीआर के उसके बारे में जो रूलिंग दी हुई है, उसके बाद में टेलीकॉम सेक्टर के जो शेयर्स है उसके में उस पर क्या असर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो बातें हुई थी कि एमटीएनएल और बीएसएनएल को मर्ज करना है या डिसइन्वेस्टमेंट करना है, तो उस पर भी कुछ आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। थैंक यू। तो प्राइसेस रही हैं स्टॉक मार्केट्स की, वो ऑलरेडी जब एजीआर का इशू उठा था और उसके ऊपर रूलिंग आई थी, उसी समय प्राइसेस काफी हद तक डिस्काउंट हो गई थी। कंपनीज को ऑलरेडी प्रोवाइड करना था जो उनके ऊपर पेनल्टी लगी है और ओवरऑल पेमेंट्स के बारे में मार्केट को पता था। तो अब उस जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है वो सिर्फ ये है कि उन्हें वो पेमेंट करनी है और उस पर लिटिगेशंस नहीं होंगी, तो वो ज्यादा असर नहीं करनी चाहिए स्टॉक मार्केट की शेयर्स पे। आपका दूसरा सवाल मैं सुन नहीं पाई थी। अगर बीएसएनएल और एमटीएनएल के मर्जर को लेकर के जो बातें चल रही थी, वो कहाँ तक ये मसला अभी पहुंचा है, ये जानना चाह रहे थे।
जी देखिए, वो अभी बातचीत में है और अभी पूरी तरीके से उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। जी, और हमारे अगले कॉलर भी मुंबई से ही हैं, रत्नाकर जी। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल है कि ये जो नए नए आईपीओज आ रहे हैं, उसका जो इशू प्राइस जो रहता है वो किस जगह वो 4 फिगर है, 4 डिजिट, कुछ जगह 2 डिजिट है, कुछ जगह 3 डिजिट है। ये इशू प्राइस कैसा फिक्स होता है और ये कौन फिक्स करता है, उसमें गवर्नमेंट का रोल है क्या? जी। एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि जो रिटेल इन्वेस्टर, कॉमन रिटेल इन्वेस्टर है, उनका जो पोर्टफोलियो रहता है, उसमें पोर्टफोलियो में जनरली कौन से सेक्टर के स्क्रिप्ट आने चाहिए और वो कितने स्क्रिप्ट होने चाहिए? जी देखिए, आपका पहला सवाल है कि किस इशू प्राइस होती है। वो एक ज्यादातर रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आता है, उसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने डिसाइड की है। एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है जिसमें जो है इन्वेस्टर्स को एक प्राइस रेंज दे दी जाती है, जिसके तहत वो बताते हैं कि वो कितने शेयर्स किस प्राइस पे खरीदना चाहेंगे और फिर एवरेज प्राइस डिसाइड करके वो प्राइस रखी जाती है। प्रीवियस एवरेज 6 मंथ्स एवरेज भी ली जाती है, जिसके ऊपर प्राइस डिसाइड की जाती है। जहां तक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की बात है, वो कोई स्पेसिफिक पोर्टफोलियो कहना बहुत मुश्किल है। पोर्टफोलियो 2 स्टॉक से लेकर के पूरी मार्केट तक का होता है और वो एक निवेशक पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहता है और किन सेक्टर्स में ग्रोथ देखता है या क्या रिस्क प्रोफाइल रखना चाहता है जिसपे वो निवेश करना चाहता है। And now our next listener is from Delhi, Mr. Satish. Mr. Satish, welcome to the program. Please ask your question. मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम, जैसे पिछले काफी टाइम से न्यूज में आता है कि भाई FII ने आज इतने पैसे विड्रॉ कर लिए भारत की मार्केट से, आज इतने निकाल लिए। तो मैडम, क्या जो जैसे ये बैंकिंग में जो इंटरेस्ट कम हो गया, 5% से भी कम हो गया, तो क्या फिक्स डिपॉजिट में भी कमी आई है कि भाई लोगों का इस साइड ही रुझान कम हुआ है, वो तो लोगों का फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा कि भाई इसमें भी इन्वेस्ट करें? ये बताइएगा मैडम, धन्यवाद। देखिए, फिक्स डिपॉजिट को हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह और एक पैसिव इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है और ज्यादातर लोग जिनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स के बारे में नहीं पता होता और एक सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं। पर क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफी लो हैं अभी, लोग और इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स की तरफ देख रहे हैं जो सिक्योर हैं, जिसके तहत हम अगर देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो गई हैं, जिसमें वो निवेश कर सकते हैं। और ऐसे ही और सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं जिनमें लोग निवेश कर सकते हैं। जी, और अब दिल्ली से ही सतीश वर्मा फोन लाइन पर है अपने सवाल के साथ। हेलो जी, हेलो सतीश वर्मा जी। हाँ जी। जी हाँ, आप मेरा सवाल है, मेरे पास यूटीआई के कुछ फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हैं जी। 3 साल पहले तक मेरे पास उसका डिविडेंड भी आता रहा, लेकिन अब डिविडेंड भी आना बंद हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपके पास यूटीआई के शेयर्स हैं? फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। आप जाकर के अपने स्टॉक ब्रोकर से कहिए और उनको कन्वर्ट करा लीजिए फिजिकल फॉर्म से डीमैट फॉर्म में। Let's move on. Let's have a look at the way the currency behaved today. The rupee today weakened marginally by 1 paisa to close at 74 rupees and 42 paisa against the US dollar. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, fell 0.22% to trade at 92.71 in intraday trade. And our next listener is Mr. Gaurav from Delhi. Mr. Gaurav, welcome to the program. Please ask your question. मैडम, यामिनी जी से पूछना था, ये जो कंपनीज का जो है हेलो कैपिटल। हेलो जी, गौरव जी अपना सवाल दोबारा पूछिए, आपकी आवाज जी। ये कंपनीज जो लिमिटेड कंपनीज जो होता है वो शेयर मार्केट में बोलता है कि इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये थोड़ा डिफाइन कर देंगे मैडम क्या? ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जो टोटल एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, जितने की उसको अथॉरिटी है इशू करने की। इशूड कैपिटल होता है जितना उसने लोगों से पैसा उठाया होता है, वो इशूड कैपिटल होता है, और उसमें से कितना सब्सक्राइब हुआ, कितने लोगों ने कितना पैसा दिया, उसे सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। जी
Now we have Mr. Shrikant from Bengaluru. Welcome to the program, Mr. Shrikant. Please ask your question. नमस्ते जी। नमस्ते जी, अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि बिरला कैपिटल की एक स्कीम बताते हैं जो कि सीनियर सिटीजन के लिए इमीडिएट एन्युटी, इसके बारे में कुछ बताएं। किस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं? बिरला कैपिटल इमीडिएट एन्युटी के बारे में हम यहाँ बताना चाहेंगे श्रीकांत जी कि हम किसी स्पेसिफिक स्टॉक या शेयर के बारे में यहाँ बात नहीं करते हैं। अगर आपको जनरल अपनी किसी आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोई सलाह चाहिए, तो हम उस बारे में बात कर सकते हैं। जी, और पेंशन से रिलेटेड जो है ये सवाल इनका था कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन और इमीडिएट एन्युटी क्या होती है। अगर हमारी इमीडिएट एन्युटी ये होती है कि जब आप एक पर्टिकुलर पेंशन प्लान लेते हैं जिसके अंदर आप एक लमसम पेमेंट पे करते हैं कंपनी को, और फिर वो कंपनी जो है आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स करती है जब तक आप जिंदा रहते हैं, अगर आप वो लाइफ टाइम के लिए लेते हैं तो। जी, और पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। हेलो। हाँ जी सर। जी पंकज जी, सवाल पूछिए अपना। वेरी वंडरफुल प्रोग्राम। जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप थोड़ा तेज बोल सके। गुड इवनिंग मैम, एंड वेरी गुड प्रोग्राम। शुड बी 1 hour एनीवे, इट इज नॉट आवर योर हैंड। जी, आई वांट टू नो कि DHFL हमारे डीमेट अकाउंट में डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका कुछ हमें कुछ करना है, क्योंकि वो NCD हमने लिया हुआ है, तो उसका कैसे पता चलेगा। एंड आगे जो मार्केट का जो जिस पोजीशन पे है, तो उसमें कौन से सेक्टर में अगर रिटेल इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्या फर्टिलाइजर में करना चाहिए, या सीमेंट सेक्टर है, या फिर इंफ्रा है, या एग्रो बेस्ड है, कहाँ पे उसको करना चाहिए इस समय? जी, इनके डीमैट अकाउंट में DHFL का शेयर दिख रहा है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता। जो अगर आपके जो भी डिविडेंड्स होंगे या कोई भी चीज होगी वो आपको मिल जाएगी। और जहां तक निवेश करने की बात है, आप IT सेक्टर या फार्मा सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, ये अच्छे सेक्टर्स हैं। FMCG भी एक अभी के लिए एक अच्छा सेक्टर है जिसमें निवेश कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके समय सीमा आप 3 से 5 साल रखना चाहते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स भी एक अच्छे सेक्टर्स हो सकते हैं। जी, और अब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं RS दहिया। मिस्टर दहिया, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें। मैम नमस्कार। नमस्कार। मेरे 2 छोटे क्वेश्चन है यामिनी जी से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज ऑन टुडे इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन GDP एज ऑन टुडे? The market capitalization is not equivalent to the GDP right now. Hello. Ji. Yes. The second question is that my request to Market Mantra team to have a separate program where you could give fundamental research based some advice to the common investor, because they cannot hire financial advisor at very high price. जी, definitely, Mr. Daya, we will definitely take into account your suggestion, and that is why we have these call-in programs where you can ask questions from our experts. Right, and let's move on to the next news, which is coming from the Asian markets. Vishal, एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो आज एशियाई शेयर बाजार लुढ़क कर 7 महीने के निचले स्तर पर आ गए। चीन में विनियमन से जुड़ी चिंताओं से निवेशकों की धारणा कमजोर रही। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में कंपनियों के मजबूत नतीजों के चलते निवेशकों ने उभरते बाजारों की बजाय वॉल स्ट्रीट में पैसा लगाना जरूरी समझा। हांगकांग के हैंगसेंग में 4.1% की बड़ी गिरावट रही। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.3% के नुकसान में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% गिरावट में रहे। हालांकि जापान का निकेई 1% की बढ़त दर्ज करने में कामयाब रहा। अंतर्देशीय कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजार नुकसान में चल रहे थे। लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 0.3% की गिरावट तथा जर्मनी के डेक्स में 0.5% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे। और अब हमारे साथ बहादुरगढ़ से जुड़ गए हैं अब्दुल मुख्तियार। अब्दुल साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें। जी मैम नमस्कार। जी मैम, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ मैम, जैसे हम 20,000 रुपए अगर हम निवेश करना चाहें। आप प्लीज थोड़ा सा जोर से बोलिए।
जी अब्दुल जी, आपसे ये गुजारिश है कि थोड़ा सा जोर से बोलें। मैम 20,000 रुपए हम निवेश करना चाह रहे हैं। जी हेलो। हाँ, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ जी, तो जैसे हम 20,000 रुपए निवेश करना चाह रहे हैं सर, और हम चाह रहे हैं कि हमें बेनिफिट ज्यादा हो, तो किसके कौन सी बैंक हमारे लिए सबसे लाभदायक होगी सर? जी जी देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक लंबे समय में रखना चाहते हैं जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक लॉक इन पीरियड हो, तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खुल गई हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी निवेश कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। और अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड्स जो डेट में या बैलेंस्ड फंड में हो, उनमें भी निवेश कर सकते हैं। And now we have Mr. Jamshed from Mumbai online. Mr. Jamshed, welcome to the program. Please ask your question. Yeah, good evening. Good evening. My question is that is the LTC cash voucher scheme applicable this year? Thank you. I couldn't hear the question. Repeat that. LTC कैश स्कीम के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे। LTC he wants to know whether the LTC सरकार की जो स्कीम है LTC कैश, वो उस समय दी गई थी। उसकी समय सीमा मुझे 1 साल थी, तो वो उस समय दी गई थी और कोविड के दौरान रखी गई थी, तो मेरे ख्याल से उसकी समय सीमा 1 ही साल थी। जी, और अब थाने से हमारे साथ हैं सुनील जी। सुनील जी, कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में अपना सवाल पूछें। हाँ, मुझे बॉन्ड मार्केट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। अभी लास्ट 3 मंथ से बॉन्ड मार्केट कुछ अच्छे नहीं कर रहे। इवन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, उनका भी कुछ रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे। तो उसके बारे में कुछ गोल्ड और बॉन्ड मार्केट में कुछ ऐसा रिलेशन है क्या? उसके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू। जी, ओवरऑल बॉन्ड मार्केट्स में इफेक्ट रहा है लो इंटरेस्ट, तो ओवरऑल बॉन्ड मार्केट्स में ज्यादा लिक्विडिटी से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतनी सेकेंडरी मार्केट नहीं है। जहां तक देखा जाए तो जो आरबीआई की रेट्स रहते हैं उन्हीं का सीधा असर पड़ता है बॉन्ड मार्केट्स पे। And now let's take a look at the oil prices today. The oil prices today fell as concerns about fuel demand from the spread of COVID-19 variants as well as floods in China offset expectations of tight supplies through the rest of the year. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $73.90 per barrel. WTI crude prices were trading around $71.70 per barrel. और बात अब गोल्ड की कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के दाम बढ़ने से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोना 120 रुपए महंगा हो गया। अगस्त महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 47,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी में भी 450 रुपए की तेजी रही। सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 67,480 रुपए प्रति किलो हो गई। डॉक्टर यामिनी, बस बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे कि अभी गिरावट का दौर चल रहा था, अब ये सोने में थोड़ा सा तेजी दिखाई दे रही है, क्या वजह है इसके पीछे आप देखती हैं? जी देखिए, जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और वो ज्यादा हो सकता है क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं डेल्टा वेरिएंट की वजह से, तो जो है सोने का भाव जो है बढ़ने की ही उम्मीद होगी। जी डॉक्टर, अगर जैसे जैसे निश्चितता होगी वैसे वैसे वो भाव गिरेगा, कम होगा। डॉक्टर यामिनी, आप कार्यक्रम में शामिल हुई और श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, उनके सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और सब चलते चलते मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। घरेलू शेयर बाजारों में हल्की गिरावट, सेंसेक्स 52,852 और निफ्टी 15,824 पर हुए बंद। अमेरिका में मजबूत कंपनी नतीजों के चलते उभरते बाजारों की बजाय अमेरिकी शेयर बाजारों में निवेश से वैश्विक शेयर सूचकांकों में गिरावट और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम फिसलकर $74 प्रति बैरल से नीचे आए। And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Do join us then. Till then, this is Anubha Rohatgi and Vishal Sharma Singh. Bye-bye. Namaskar. Market Mantra.